Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are receiving thousands of queries on SBI Junior Associate notification. So in this channel, we are helping you in two ways. One is how you should prepare for this examination. That is most crucial. Side by side, we are taking up your issues and replying. Now, one question has cropped in on account of no interstate intercircle transfer in SBI Junior Associate. Here, two type of questions are asked by many candidates. First, sir, say I join in one state and after that I get married. Can I get transfer after my marriage at the place of my spouse? Second query is, sir, I become officer after few years and can I be transferred to my native town after becoming officer? So we will tackle both these questions in this video. First is, once they recruit you under a clause that under no circumstances interstate intercircle transfer will be effected in the present cadre, that means you are agreeing that under no circumstances you are eligible to get transfer from one state to another. But there are government guidelines which provides transfer at the spouse place if you fulfill certain criteria. So after marriage, if you are falling under that category which fulfills the criteria of spouse transfer, that means say your spouse is working in an organization who can be transferred to your place, your bank may not consider your transfer application. But if he is placed at a place from where transfer is not possible at your station, that means that is a state government job or a job of a department which does not have office in your state, in that case, bank can consider as a special case your application if it is a case of spouse. But bank has every right to decline this also. So it is not binding on the bank to consider. Banks are considering, State Bank also considered some intercircle transfer on this ground in past also. Now the second question comes, if I become officer, can I move to my state? This is very ticklish question. Why I call it a ticklish? Because there is no straightforward answer for such questions. Because what will be the policy of transfer when you become officer of State Bank of India cannot be foreseen today. If we go by the present policy is that in State Bank of India, most people, they are promoted within circle for up to scale 4. That means if you are sitting in TO examination and if you pass from TO to officer, there is every likelihood you will get the same state where you are working. Because SBI adopts circle system. If they place you in another circle due to non-availability of vacancies, this will not be based on your request, but this will be based on requirement of the bank. So even that state can be farther than present state, it can be nearer than present state, it can be same state. So in every promotion, the placement is done
as per the requirement of the organization, not as per the request of the officer. So you have to be very clear, even after promotion, there is no guarantee that you will move to your native state. You may be lucky that on allocation of states you may get that state, or at that time bank may come out with a policy where they ask your choices, your preferences. So it is all a thing which is in suspense, because the placement policy is applicable on happening of an event. So what will be the policy of State Bank of India 5 years from now, 6 years from now, or 10 years from now, when you will be becoming officer, cannot be discussed today. Your decision should be based on present cadre. The present cadre is clerical, and in the clerical cadre, interstate and intercircle transfer is prohibited as per the guidelines. And if you are comfortable in working in another state, you should go for that state. That should be your criteria for decision making, so that you don't repent later on. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। SBI जूनियर एसोसिएट का जब से सर्कुलर आया है, हजारों उसके अंदर हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम धीरे धीरे सब क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसके अंदर इंटर स्टेट इंटर सर्कल ट्रांसफर परमिटेड नहीं है। दैट मीन्स जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे, जहां सिलेक्शन होगा वहीं पे आप रहेंगे, वहां से आप दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते, दूसरे सर्कल में नहीं जा सकते। अब यहाँ पर दो तरह के प्रश्न आए हैं। पहला है उन बच्चों का कि सर जब हमारी शादी हो जाएगी तो क्या हमारी ट्रांसफ़र संभव है जहां हमारा स्पाउस रह रहा है, मीन्स स्पाउस ग्राउंड पे क्या हम अपने स्टेट जा सकते हैं। दूसरा है कि क्या ऑफिसर बनने के बाद हम अपने स्टेट जा सकते हैं। दोनों प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है स्पाउस। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी पोस्टिंग कर रहा है इसके अंदर, उसमें क्लियरली आपको बता रहा है कि आपकी कोई इंटर स्टेट इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये मानकर आप अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट बैंक के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपको ट्रांसफ़र करने की। पर भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं जिसके अंतर्गत स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कंसिडर की जा सकती है। तो ये मैनेजमेंट की प्रेरोगेटिव है कि वो आपको ट्रांसफ़र करे या ना करे, और उसके अंदर भी कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। ग्राउंड रूल्स में नॉर्मली ये होता है कि मान लीजिए जो आपका स्पाउस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन की भी ब्रांच या ऑफिस आपके स्टेट में है, तो आपका बैंक कहेगा कि आपको क्यों ट्रांसफ़र दे, आपका स्पाउस ट्रांसफ़र ले आपकी जगह, क्योंकि आपका तो जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है और आपके स्पाउस का जॉब ट्रांसफरेबल है, तो वो उसको लेना चाहिए। पर मान लीजिए आपका स्पाउस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है जिसकी ऑफिस आपके स्टेट में नहीं है, मींस वो नॉन ट्रांसफरेबल है। उस अवस्था में अगर बैंक सेटिस्फाई होता है कि वो यहाँ नहीं ट्रांसफ़र हो सकता और आपका वैवाहिक जीवन सही चले, तो वो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, वो भी उसका प्रेरोगेटिव है। ऐसा नहीं है कि जरूरी है वो करेगा। हाँ, पास्ट में इंटर सर्कल ट्रांसफर्स इस ग्राउंड पे स्टेट बैंक ने की हैं, तो एक संभावना है इसके अंदर। अब दूसरा प्रश्न है कि अगर मैं प्रमोट हो जाऊं, अफसर बन जाऊं तो क्या मैं अपने स्टेट में चला जाऊंगा। अब इसके अंदर ये जो प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न है जिसका बहुत टिकलिश आंसर है, क्योंकि आप उस अवस्था की बात कर रहे हो जो आज से 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल के बाद होने वाली है। और 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद स्टेट बैंक की क्या पॉलिसी होगी, उस पर हम आज चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसीज, प्लेसमेंट पॉलिसीज गो ऑन चेंज इन बैंकिंग।
अगर हम आज का आधार लें उसके अंदर जो पॉलिसी है स्टेट बैंक की वो ये है कि स्केल 4 तक स्टेट बैंक कोशिश करता है अपने एम्प्लॉइज को सेम सर्कल या स्टेट में रखने की। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रमोट होंगे आपकी चॉइस से पोस्टिंग नहीं होगी, आपसे कोई चॉइस पूछी भी नहीं जाएगी, पोस्टिंग होगी जहां बैंक की रिक्वायरमेंट है। तो पहले वो कोशिश करेंगे उसी स्टेट में रखने की जो आपका सर्कल है, जिसको हम होम सर्कल बोलते हैं। अगर वहां पर जगह नहीं है, वहां वैकेंसीज नहीं है, आप प्रमोट हो गए हैं, तो वो इन प्लेस ऑफ नीड जहां पर जरूरत है बैंक की वहां पर आपको प्लेस करेंगे। वो सर्कल आपके घर का सर्कल भी हो सकता है, वो सर्कल आपके घर से दूर भी हो सकता है, वो सर्कल आपके होम स्टेट के नज़दीक भी हो सकता है। तो वो रिस्क हमेशा है, क्योंकि जब आप ऑफिसर कैडर में जाते हैं तो आपकी रीएलोकेशन होगी। तो नॉर्मली आप इसी सर्कल में रहेंगे, नॉर्मली आप इसी स्टेट में रहेंगे, बट स्टेट परिवर्तन भी हो सकता है अगर उस स्टेट में उस रैंक में उतनी वैकेंसीज नहीं है। तो इसलिए टीओ बनने के बाद आपकी क्या स्थिति होगी उसको आज हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको जो भी डिसीजन लेना है आज की गाइडलाइंस पे लेना चाहिए। जिस स्टेट में आप नौकरी करने में कंफर्टेबल हैं और पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं वही स्टेट आपको ऑप्ट करना चाहिए। किसी के सब्ज बाग दिखाने पे, किसी की मिस इन्फॉर्मेशन देने में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप बाद में बहुत पछता सकते हैं। जो भी आप निर्णय लें सोच समझ के लें, क्योंकि जब हमें नौकरी लेनी होती है तो हमें लगता है हमें कैसे भी नौकरी मिल जाए, पर जब हमें नौकरी करनी होती है और जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं बड़ी मुश्किल से उनकी नौकरी लगती है और वो 1 मिनट में रिज़ाइन भी कर देते हैं। अभी भी 3-4 दिन पहले मेरे पास बॉम्बे के एक एम्प्लॉई का फ़ोन आया स्टेट बैंक के कि सर मैं पंजाब को बिलोंग कर रहा हूँ, मुझे अपनी शादी करनी है और शादी मेरे को पंजाब में करनी है, क्या मेरी ट्रांसफ़र पंजाब हो जाएगी या मैं जॉब छोड़ दूँ। अब वो अनकंफर्टेबल है। उस समय उसको लगा महाराष्ट्र अप्लाई कर दूं तो ज़्यादा वैकेंसी है, पंजाब में कट ऑफ हाई जाता है, महाराष्ट्र में कम जाता है, मैं वहाँ निभा लूँगा। जब वो बॉम्बे पोस्ट हो गया और वहाँ पर जब वो किराए देने पड़ रहे हैं, वो कह रहा है मेरे पास 1 पैसा नहीं बचता सर, मुझे लग ही नहीं रहा मैं नौकरी कर रहा हूँ, बल्कि घर वालों से पैसे मंगाता हूँ। तो सोच समझ के करिए। मैं हमेशा इस बात का हकदार हूँ, आपको होम स्टेट से अप्लाई करना चाहिए। अब इस बार बड़ी पेक्यूलियर पोजीशन हो गई, होम स्टेट में वैकेंसीज नहीं है कईयों पे, बड़ी विकट स्थिति है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगा। अभी मैं आई एम वेटिंग कि कोई अच्छी खबर आ जाए आपके होम स्टेट से। अगर नहीं आती है तो फिर क्या करना है, फिर देखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।